My great privilege to welcome you to the second lecture of Arogya Health Lecture Series. It's an initiative by IIT Delhi Hospital Services and Academic Office committed to promoting preventive healthcare awareness and encouraging evidence based discussions on critical health issues. The Arogya series is designed to empower us with expert insights into essential health topics, enabling us to make informed choices for a healthier and a more active lifestyle. Today, we are delighted to host our second session on understanding and managing back pain. Back pain is one of the most common health issues affecting people of all ages, and through today's session, we aim to understand its causes, preventive strategies, and effective management techniques. We are privileged to have Dr. Bau Garg, Professor of Orthopedics at AIIMS, New Delhi, with us today. A leading authority in the field of orthopedics, Dr. Garg brings with him the vast experience in the treatment of musculoskeletal disorders, that is MSDs, and advancing techniques for spinal health and pain management. In this session, Dr. Garg will share practical strategies for management and preventing back pain and the treatment options available, and emphasize the role of mental wellness in managing chronic pain. To begin, I would like to invite Dr. Mahesh Sagar, Head of IIT Delhi Services, to formally introduce our distinguished guest and share a few words of importance on spinal health in our daily lives. Please welcome Dr. Sagar with a big round of applause. Good afternoon, esteemed guests, colleagues, and participants. It's with immense pleasure and enthusiasm that we introduce our distinguished speaker for today's anticipated health talk on backache, do's and don'ts, Dr. Bhavak Garg, a visionary in spine surgery and a leader in orthopedic innovation. Dr. Garg's journey in medicine is nothing short of extraordinary. An alumnus of UCMS and AIIMS Delhi, where he did his MS in orthopedics, he further honed his expertise through prestigious global fellowships, including the Dartmouth Spine Fellowship USA, Robert Rowe Fellowship, and ASSI Spinal Traveling Fellowship. His international training across Germany, UK, and USA has equipped him with a unique perspective on spine care, blending advanced surgical techniques with patient centric approaches. A true pioneer, Dr. Garg has revolutionized spine surgery in India by establishing the country's first 3D printing ortho lab, introducing robotics and minimally invasive techniques, and developing cutting edge solutions like FlexiOH and enhanced recovery pathways. His work in AI driven spinal diagnostics and biodesign underscores his commitment to merging technology with medicine for better patient outcomes. Beyond his surgical brilliance, Dr. Garg is a celebrated academician and researcher. With 318 publications, 53 book chapters, and 6 patents, his contributions to medical literature are vast. He has been honored with 55 plus prestigious awards, including the NASI Reliance Award 2022, GAPU Surgical Excellence Award, and DBT's Innovative Young Biotechnologist Award, reflecting his unwavering dedication to advancing orthopedic science. As an active leader in uh, global spine societies, Dr. Garg serves as chair of SICOT Spine Society, member of the SRS Patient Education Committee, and associate editor for leading orthopedic journals. His role in shaping spinal care policies, especially during the pandemic as past chair of ASSI COVID Task Force, highlights his leadership in crisis management. Today, Dr. Garg will unravel the complexities of backache, a condition affecting millions, with evidence based strategies, preventive measures, and the latest advancements in treatment. Whether you are seeking guidance for personal health, caring for a loved one, or a medical professional eager to learn, the session will equip you with invaluable knowledge. Let's give a resounding welcome to Dr. Bhavu Garg as he takes the stage to enlighten us. Dr. Bhavu Garg, please. Thank you, IIT Delhi, Dr. Sagar. Uh, so, can I ask how many of you have had back pain once or twice
in your lifetime? So I think almost, So back pain is basically the price which we pay for our, the upright posture. I'm sure that nobody would have heard that any animal, anyone else could have had back pain, because only the humans, we are as a bipedal, the bipedal beings. So the back pain as such is the second most common cause जिसकी वजह से कोई भी पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है. The number one cause is the common cold. The second most commonest is the back pain. So 60 to 80% of the people, as we have seen that 80% of the people here also they had back pain. So 60 to 80% of the patient will have low back pain in their lifetime once or at some point of in their life. Every year 10 to 20% of the population suffers from back pain. And it is the most common cause of disability under the age of 45 years. That means most of the productive, the time and the most of the productive age group, they suffer from back pain in their journey. And 1% of the US population, unfortunately we don't have any data for Indian population, but US ki 1% population is disabled. They are on disability programs because of back pain. And which is the cost of society in US is around $20 to $50 billion per year. So that shows कि कितना impact है इसका society पे, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन it is a huge impact on the society. जब भी किसी को back pain होता है, whenever anyone has back pain, we have three big questions. Is there any underlying systemic disease? क्योंकि back pain कई बार सूचक होता है इस बात का कि कोई अंदर serious problem भी चल रही है. वो कैंसर भी हो सकता है, वो टीबी भी हो सकता है, वो सिंपल विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकता है. सो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है एज ए डॉक्टर कि अंडरलाइंग कोई सिस्टमिक डिजीज तो नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है बिकॉज स्पाइन के अंदर इंपॉर्टेंट नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड होता है विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल मसल्स की मूवमेंट के लिए, उन सबके लिए बहुत ज़रूरी है. तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि कोई नर्व्स के ऊपर प्रेशर तो नहीं है या नर्व्स खराब तो नहीं हो रही हैं. Because if there is a neurological compromise, that is an emergency and we need to act immediately. Third thing जो हम लोग देखते हैं कि is there any social or psychological factor? Because कोई भी social और psychological depression या कुछ भी है तो वो किसी भी पेन को aggravate कर देता है. Back pain being the most common, back pain भी aggravate होता है. Any type of depression, any type of problems, mental or the family problems, they also exacerbate the back pain. So ये भी हमें देखना है कि वो back pain जितना patient report कर रहा है वो एक्चुअली जो स्ट्रक्चरल कॉज है वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो बेसिकली ये तीन क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा कई छोटे छोटे सवाल और हैं, बट ये तीन चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. अच्छी बात यह है बैक पेन के बारे में, अच्छी या जो भी आप कह लीजिए, कि 97% ऑफ द केसेस में इट इज जस्ट ए पोस्चरल बैक पेन. दैट मीन्स कि अगर आपका डेली बैठने का तरीका ठीक नहीं है, डेली काम करने का तरीका ठीक नहीं है, जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें अगर आपकी पोस्चर सही नहीं है तो उससे वो जो पेन होता है वो 97% केसेस में उसी से होता है. और इसीलिए उस कारण को रिमूव करते ही या कुछ एक्सरसाइजेस करते ही या आपकी पोस्चर को ठीक करते ही वो दर्द ठीक हो जाता है. बाकी जो कंडीशंस हैं 1 और 2% केसेस में कोई स्ट्रक्चरल कॉज होता है. स्ट्रक्चरल मतलब कि स्पाइन के अंदर वाकई में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको पेन है और उसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं या सर्जरी करनी पड़ती है. कई बार ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार नॉन स्पाइन कॉजेज, जैसे कि सपोज किडनी में स्टोन है, वो भी बैक पेन की तरह प्रेजेंट करता है, या गैस बन गई किसी को या एसिडिटी है वो भी बैक पेन की तरह प्रेजेंट करती है, पैंक्रियास की प्रॉब्लम्स हैं वो भी बैक पेन की तरह प्रेजेंट करती हैं. तो वो चीज़ भी हमें रूल आउट करनी होती है जब भी हम कोई बैक पेन का केस देखते हैं. तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि 97% केसेस में इट इज़ बिकॉज ऑफ पॉस्चर. नाउ सपोज आज आपका पॉस्चर खराब है, आज आपने कोई गलत काम तरीके से काम किया, आपने कोई भारी वजन उठाया गलत पॉस्चर में, आपको पेन हुआ, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा. बट अगर आप वही काम बार बार करते रहेंगे तो फिर ये चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं. देन इट लीड्स टू स्ट्रक्चरल कॉज. फिर वो आप उस 1% कंडीशन में शिफ्ट हो जाते हैं जो कि नॉन मैकेनिकल कॉजेज में आता है और फिर हमें उसमें कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ती है. तो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज ए स्पाइन सर्जन, इट इज़ इंपॉर्टेंट. आप जैसे आप लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो पूरा जो स्पाइन का ओवरऑल बैक पेन का मैकेनिज्म है वो 70 to 80% बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है.
बाकी 20% जो है वो बायोलॉजी आती है, बट वो बायोलॉजी भी अल्टीमेटली वो बायोमैकेनिक्स से ही रिलेटेड है. सो postural back pain is 70%, posture related back pain is 97%. सो एक कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि मुझे बैक पेन हो रहा है, मुझे कब वरी करना चाहिए? व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है? नॉर्मली बैक पेन मैंने आपको बताया कि 97% पॉस्चरल है, तो क्या मुझे हर बार बैक पेन होते ही डॉक्टर के पास जाना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. यूजुअली जो पॉस्चरल बैक पेन होते हैं वो यूजुअली 3-4 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं. तो रेड फ्लैग्स कब कहते हैं? अगर कोई भी बैक पेन आपका 4 हफ्ते से ज्यादा है. 4 वीक्स इज दी गोल्डन पीरियड जब हम कहते हैं कि अगर 4 हफ्ते से ज्यादा कोई बैक पेन परसिस्ट कर रहा है, तब आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर आपकी नसों में कमजोरी लग रही है, अगर आपको पैरों में कमजोरी लग रही है, अगर आपके हाथों में कमजोरी आ रही है, आप कोई सामान काम नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, या चलने में बैलेंस बिगड़ रहा है, या हाथों से सामान छूट रहा है, आप बटन बंद नहीं कर पा रहे हैं शर्ट का, इस तरह का कोई सिम्टम है, तो भी आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर आपके ब्लैडर में और बाउल के ऊपर कंट्रोल जा रहा है, वो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर जो है आपके पॉटी एरिया के अराउंड भी आपकी सेंसेशन लूज हो रही हैं, वो भी एक सिम्टम हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए. एज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. 18 साल से कम की उम्र में यूजुअली बैक पेन नहीं होता. तो 18 साल की उम्र में कोई बच्चा अगर कहता है कि मुझे बैक पेन है, तो वो भी फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए. बिकॉज इट कुड, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कुछ तरह के कैंसर हैं, कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स हैं जो बच्चों में होते हैं, और उनमें बैक पेन इज द सबसे पहले साइन होता है कि वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है. तो 18 साल से कम के अगर कंडीशन में किसी को बैक पेन है, तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सिमिलरली 60 साल से ऊपर अगर किसी को बैक पेन हो रहा है, तो भी हमें ये जो सीरियस कॉजेज होते हैं वो रूल आउट करने होते हैं. तो उनमें ये 4 हफ्ते का पीरियड जो है हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, और 2 हफ्ते पे भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा बैक पेन है 60 साल से ऊपर के आदमी में, उसको भी डॉक्टर को देखना चाहिए, और वो सीरियस कंडीशन जो हैं वो हमें रूल आउट करवा लेनी चाहिए. इसके अलावा अगर बुखार है, बुखार के साथ बैक पेन है, अगर वजन कम हो रहा है, या परिवार में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, तो भी फौरन हमें डॉक्टर को देखना चाहिए इफ देयर इज अ बैक पेन. अगर चोट लगने के बाद दर्द हुआ है, तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो किसी फ्रैक्चर का भी साइन हो सकता है. तो ये मैंने बताया. अगर कोई बैक पेन एकदम से आता है, तो एकदम से जो चीज आती है वो एकदम से जाती भी है. तो अगर लेकिन कोई पेन धीरे धीरे शुरू हो रहा है, मतलब वो 3-4 हफ्ते से धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, तो भी वो सीरियस कंडीशन का हार्बिंगर हो सकता है. तो उसके लिए भी आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए. अगर कोई बैक पेन बिस्तर में लेटने से बढ़ता है, रात के टाइम ज्यादा होता है, वो भी एक सीरियस कंडीशन का हार्बिंगर हो सकता है. तो उसके लिए भी फौरन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन की शिकायत है, अगर घर में किसी को टीबी हुआ है, या कोई आईवी ड्रग्स चल रही हैं आपकी, तो भी अगेन ये सीरियस हो सकता है. अगर स्टेरॉइड्स लेते हैं आप, अगर कोई इम्यूनोसप्रेसिव कोई दवाई चल रही है जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है, तो भी हमें फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए. ये भी एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, या कोई पहले सर्जरी हुई हो. सो अगला सवाल हमारे से पूछा जाता है कि हम कब एक्सरे कराते हैं, कब एमआरआई कराते हैं. तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है हमारे पास भी, हम जो देखते हैं कि अगर कोई रेड फ्लैग है, तो ही इन्वेस्टिगेशंस का मतलब है, नहीं तो कोई इन्वेस्टिगेशन कराने का मतलब नहीं है, क्योंकि 97% केसेस में ये पॉस्चर रिलेटेड होता है. तो अगर कोई भी रेड फ्लैग है, 4 हफ्ते से ज्यादा का बैक पेन है, तो ही हम जो है इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करते हैं. एक्सरेज हमारी फर्स्ट लाइन होती हैं, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है. एक्सरे इज लाइक स्क्रीनिंग, कि हम स्क्रीन करते हैं कि उसके अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बार हमें एक्सरे से आइडिया लग जाता है. अगर एक्सरे में हमें कुछ भी डाउट लगता है, तब फिर हम एमआरआई ऑर्डर करते हैं. एक्सरे में हम लोग बोन्स देखते हैं, ओवरऑल अलाइनमेंट का आइडिया लगता है. एमआरआई के अंदर हमें सॉफ्ट टिश्यू का आइडिया लगता है, बिकॉज एक्सरे में हम लोग जो लिगामेंट्स हैं, जो डिस्क है, वो नहीं देख सकते हैं. उससे हमें आइडिया लगता है, लेकिन हम श्योर नहीं हो सकते. नर्व्स नहीं दिखती हैं एक्सरे के अंदर. बट अगर हमें डाउट लगता है कि नर्व्स के ऊपर कुछ प्रेशर है, या डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोग एमआरआई ऑर्डर करते हैं. फिर उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज है. तो अगर मुझे कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि एक इन्वेस्टिगेशन करानी है मुझे, तो फिर अगर रेड फ्लैग्स हैं, तो फिर एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. बट यूजुअली वी स्टार्ट विद द एक्सरेज. प्रॉब्लम एमआरआई के साथ ये है कि अगर हम यहाँ बैठे हुए सब लोगों को एमआरआई कराएं, तो 25% लोगों के अंदर कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स निकलेंगी. तो मेरे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, तो उनका डायग्नोसिस होता है मुझे L4 L5 पे डिस्क है. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम पेशेंट की. पेशेंट की प्रॉब्लम L4 L5 की डिस्क नहीं है, पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको बैक पेन है.
अब वो बैक पेन किस वजह से है वो नहीं होता। तो एक बार एमआरआई होने पर ये स्टडीज भी पब्लिश हो चुकी हैं कि अगर एमआरआई में कुछ भी abnormality निकलती है तो वो पेशेंट के दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जबकि वो उसका कॉज, उसका कुछ प्रॉब्लम कुछ और ही होती है। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली एमआरआई एडवाइस नहीं करते हैं, बिकॉज उससे एक साइकेट्रिक कंपोनेंट, एक जो एक थिंकिंग वाला कंपोनेंट है वो ऐड हो जाता है कि मेरी डिस्क खराब है। अब जब डिस्क खराब होती है तो वो चाहे प्रॉब्लम का कॉज, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका कॉज है कि नहीं है वो नहीं होता, लेकिन वो ठीक बड़ा मुश्किल से होता है। तो इसलिए लोग नॉर्मली जो हम नहीं करते हैं, और एज के साथ साथ भी डिस्क में चेंजेस आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि जो एमआरआई की रिपोर्ट आप देखते हैं उसमें बड़ी सारी लंबी सी रिपोर्ट होती है, बट दे आर जस्ट लाइक बाल सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल वैसा ही उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। जरूरी नहीं है कि वो आपके कॉजेज हो, आपके सिम्टम का कॉजेज हो, वो जस्ट एज रिलेटेड चेंजेस भी वो डिस्क्राइब करते हैं। नाउ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, कॉमन ट्रीटमेंट की, तो बैक एक्सरसाइजेज होती हैं। तो यूजली वी रिकमेंड कि स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो है एक्यूट बैक पेन में हम लोग प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। एक्यूट बैक पेन में हम यूजली से कहते हैं कि 2-3 दिन का रेस्ट लीजिए आप, बट जब क्रॉनिक बैक पेन होता है तब हम उसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं। वो एक्सरसाइजेज कई तरीके की हो सकती हैं, वो डॉक्टर से पूछ के ही करनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी एक्सरसाइजेज बेटर हैं। लोग पूछते हैं कि मसाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो देयर इज नो एविडेंस कि मसाज काम करता है, उल्टा उससे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैंने कितने ही पॉलिटिशियंस को भी देखा है कि पहलवान को चलवाते हुए कमर के ऊपर, बच्चों को चलवाते हुए कमर के ऊपर, वो सब नहीं करना है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। एक्यूपंक्चर भी लोग पूछते हैं, एक्यूपंक्चर का बड़ा ही मिक्स एविडेंस है, बट साइंटिफिक एविडेंस कुछ नहीं है कि वो काम करता है। बेड रेस्ट का हम लोग आजकल बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, अनलेस पेशेंट की सर्जरी हुई हो, तो भी फर्स्ट 24 आवर्स के लिए हम मे बी बैक रेस्ट एडवाइस करते हैं, क्योंकि बेड रेस्ट से मसल्स की एट्रोफी शुरू हो जाती है, और मसल्स ही तो आपके लिए प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है। आपकी मसल्स वीक होती जाएंगी तो वो इससे विशेष सर्कल, फिर वो आपकी जो बैक पेन है ना वो बढ़ता ही चला जाता है, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बैक पेन में यूजुअली हम बेड रेस्ट अवॉइड करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 डेज का रेस्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम रेस्ट नहीं एडवाइस करते हैं। सिमिलरली जो ब्रेसेस हैं, जो बेल्ट लोग पूछते हैं, उसकी भी बहुत स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होती हैं, वो डॉक्टर के से पूछे बिना नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि मुझे चलो 2 हफ्ते से पेन है, मैंने बेल्ट लगा ली, उससे भी अगेन आपकी मसल्स का काम अब बेल्ट पे शिफ्ट हो रहा है, तो मसल्स फिर वीक होना शुरू हो जाती हैं और फिर एक्सरसाइजेस का काम भी डबल हो जाता है। हीट थेरेपी का भी बड़ा लिमिटेड सा एविडेंस है कि वो काम करती है कि नहीं करती है बैक पेन में। तो अगेन हम लोग पेशेंट को यही बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है आप कर लीजिए, उसका कोई एविडेंस नहीं है, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। नुकसान ये हो सकता है कि आपने बहुत तेज हीट लगा ली है, तो बर्न्स हमने जरूर देखे हैं पेशेंट्स में कि हीट से बर्न हो गए, बट एज सच उसका कोई फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो अगर पेशेंट को अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसका कोई फायदा या कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट 24 आवर्स में हम लोग आइस रिकमेंड करते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स के बाद में फिर आइस का रोल नहीं खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में हीट थेरेपी इज बेटर। इसके अलावा पेन किलर्स देते हैं, अगेन शॉर्ट कोर्स ऑफ पेन किलर्स। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 to 5 डेज के लिए पेन किलर्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज कर सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट्स भी आते हैं, ओपियोइड्स भी आते हैं, बट अगेन इसके लिए फिर आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। एंटी डिप्रेसेंट्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल के पेन में हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने स्टडीज भी हैं कि जो सोसाइटी के जो डिप्रेशन और फैमिली फैक्टर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कई बार हमें ये कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ता है ना, पेशेंट लड़ाई करता है कि जी मुझे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो है नहीं, फिर आपने क्यों लिख दिया। बट दीज आर सम अंडरलाइंग हिडन फैक्टर्स एंड देयर आर टेस्ट्स आल्सो। हम बातचीत में ही उन टेस्ट को लगा के हमें पता चल जाता है कि इसमें कितना कंपोनेंट है उसका, तभी हम देते हैं उस चीज को। इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड में बैक स्कूल्स की भी कॉन्सेप्ट है। सपोज देयर आर 15 पेशेंट्स जिनको नॉन स्पेसिफिक बैक पेन है, कोई कॉज नहीं है, तो बेसिकली उनको फिजियोथेरेपी चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, तो बैक स्कूल के 15 लोगों को एक साथ बुला लेते हैं। जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप्स होते हैं कि अल्कोहल वालों को सबको साथ बुला लिया, सब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। सेम बैक स्कूल का भी कॉन्सेप्ट है, सब लोग जब मिलके एक्सरसाइजेस करते हैं, जब सब लोग अपने साथ जैसे लोगों को देखते हैं कि और भी लोग हैं हमारे साथ में, फिर उसका आउटकम बेटर है। ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है कि बैक स्कूल्स दे वर्क, बट दिस कॉन्सेप्ट इज स्टिल नॉट देयर इन इंडिया। मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपी, दैट मीन्स के आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी बात करके उसकी भी मेडिसिन ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं, अगर साइकेट्रिक कॉम्पोनेंट है साइकेट्री वाले की भी ओपिनियन ले रहे हैं, वो सब चीज़ें करके करते हैं, तो मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपी का ऑब्वियसली बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा ये हीट थेरेपीज हैं स्पेशल तरीके की, लाइक माइक्रोवेव, टेंस थेरेपी, इनका कोई डेफिनेटिव रोल नहीं है। मैनिपुलेशन, कई लोग, जैसे इंडिया में तो नहीं है, लेकिन जैसे इंडिया में पहलवान है वैसे ही बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में कायरोप्रैक्टर्स होते हैं, दे डू सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, बट अगेन
this practice is not recommended in India because this is not a standard practice. Nobody teaches us the correct manipulation here, so it is dangerous so far as India is concerned. Massage, again, if it is being done with a physiotherapist with proper this thing, it can help a bit, but again there is no proper evidence this thing. Now I'm going to share some tips and tricks in your daily life which you have to do if you have a if you want to avoid this thing. So 90% of back pain, it is preventable. So this we have already covered, that if you keep on doing these bad posture things again and again, this becomes a cumulative trauma, and again these temporary things converts into a permanent thing. So जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बाल सफेद हो जाते हैं, अब एक बार बाल सफेद हो गए आप उसको काला नहीं कर सकते. The only thing is कि आप उस पर रंग लगा सकते हैं, रंग लगा के काला कर सकते हैं. तो सेम थिंग, एक बार आपको स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया बैक में, तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. उसको वही है कि आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको वो करेंगे, तो आप उसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं. बट अगेन एक बार जो डैमेज हो गया, एक बार जो नर्व्स को वो आ गया, वो फिर परमानेंट होता है. उसको फिर आप मसल्स को स्ट्रेंथन करके फिर आप उसको कर सकते हैं. जिस दिन आप एक्सरसाइज छोड़ेंगे, दोबारा से फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा. सो इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज को होने न दें. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो बैक पेन के मामले में प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे कि हम लोग बैक केयर करते हैं, तो बैक केयर हमारे यहाँ हमारी लाइफ में हर टाइम चलती है, चाहे हम बैठे हों, चाहे लेटे हों, चाहे सो रहे हों, सब में बैक केयर अप्लाई होती है. और वो हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अपने रूटीन लाइफ में यूज़ कर लेंगे तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेन गुड पॉस्चर. ना सवाल ये होता है कि गुड पॉस्चर क्या है. तो एक सिंपल सा टिप है, इफ यू जस्ट रेज योर शोल्डर अप एंड देन टेक इट बैकवर्ड. सो अब जो आपकी स्पाइन की कंडीशन है, ये करेक्ट पॉस्चर है. नाउ अब आप चल रहे हैं, अब आप बैठे हुए हैं, आपको ये पॉस्चर मेंटेन करना है. हर एक आदमी की बॉडी अलग अलग है, बट ये सिंपल टिप, फर्स्ट अप एंड देन बैकवर्ड. आई एम श्योर आप में से कोई अगर जिम जाता है तो भी आपको, अगर कोई करेक्ट ट्रेनर है ना, तो वो भी यही बताएगा कि पहले आपको ब्रेसिंग पोजीशन में आना है, उसके बाद ही आपको कोई एक्सरसाइज करनी है. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गुड पॉस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब लिफ्टिंग कैसे करनी है, कोई सामान उठाना है आपने, तो आप ये देख रहे हैं कि दो है. एक तरीका है कि आप घुटने के बल बैठ के फिर आपने सामान को उठाया, और एक है कि आप झुक के सामान को उठा रहे हैं. तो ऑब्वियसली जो झुक के उठाने वाला सामान है, नॉर्मली लोग यही करते हैं, वो नहीं करना है, वो डेंजरस है. आप ये देखिए कि अगर मैं 4 kg का वेट नॉर्मली वैसे बैठ के उठाता हूँ तो स्पाइन पे 4 kg का वेट ही डालेगा, बट उसको मैं झुक के उठा रहा हूँ तो स्पाइन के ऊपर ऑल बायोमैकेनिक्स है, 40 किलो का वेट ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज लिवर आर्म बढ़ जाता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो बेसिक रूल्स क्या हैं गुड लिफ्टिंग के? सबसे पहले आपको पता है कि कोई मुझे भारी वेट उठाना है, उठाने जा रहा हूं मैं. भारी वेट क्या मतलब, यूजली आपके बॉडी वेट से 10% का कुछ भी है तो दैट इज एक्चुअली हैवी वेट. तो स्ट्रेच करना है, सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेच करना है, बॉडी को प्रिपेयर करना है कि मैं कुछ हैवी वेट उठाने जा रहा हूं. लोड का आइडिया होना चाहिए कि कितना लोड होगा इसका, सो दैट बॉडी की मसल्स उसी हिसाब से फायर कर सकें. बेंड योर नीज, अपने आप को उस लोड के ऊपर सेंटर करना है, सीधा उठाना है. लेट योर लेग्स डू द वर्क रादर देन स्पाइन के बजाय लेग्स से काम लेना है. बैक को स्ट्रेट रखना है, सामने देखना है. ट्विस्टिंग और टर्निंग बिल्कुल नहीं करनी है. फीट को अंदर की तरफ पॉइंट इन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द लिफ्ट. एंड देन जिस रास्ते पे आपको चलना है वो भी होना चाहिए कि वो रास्ता क्लियर है. अगर रास्ते में सामान पड़ा है फिर मैं वेट उठा के उधर टर्न कर रहा हूं तो अगेन इट इज कॉजिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑन योर स्पाइन विच इज अगेन वेरी डेट्रीमेंटल. And then set the load down properly. Always push a cart or trolley. Never pull. Pull करने में ज्यादा आपका जो है स्पाइन के ऊपर लोड आता है. ये सिंपल ट्रिप है कि जब भी आप चल रहे हैं एक पैर दूसरे पैर के आगे रखना है एंड देन लोड को बिल्कुल अपनी बॉडी से पास में रखते हुए फिर आपको आगे चलना है. अगर ज्यादा वेट है तो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प. हैवी लोड्स को जितना स्प्लिट कर सकते हैं उतना स्प्लिट करना है. ये सब वेरी सिंपल चीजें हैं जो सबको पता है, बट फॉलो कोई नहीं करता है. ट्विस्टिंग और टर्निंग वेट, हैवी वेट के साथ बिल्कुल नहीं करनी है. जितना ऑब्जेक्ट को पास में रखेंगे उतना आपकी स्पाइन के ऊपर कम लोड पड़ेगा. अगर आप इसको 4 kg के वेट को मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ऑब्वियसली इट विल अगेन लिवर आर्म बढ़ जाएगा, 40 kg का वेट आ जाएगा स्पाइन के ऊपर, विच इज नॉट गुड. नाउ बेडरूम में सोने की बात करते हैं. तो 1/3 ऑफ आवर लाइव्स दे आर स्पेंट इन द बेड. तो बेड की मैट्रेस और बेड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है कि बेड आपका रिटायरमेंट के लिए रेडी है कि नहीं है. तो अगर आपका बेड मोर देन 8 to 10 years ओल्ड है, चेंज कर दीजिए.
मैट्रेस फ्लॉपी है, अनइवन है, लंप से पड़ गए हैं उसके अंदर, चेंज कर दीजिए। आपको उसके स्प्रिंग फील होते हैं, चेंज कर दीजिए। आप अपने आप ही लुढ़क जाते हैं उसके अंदर, तो भी चेंज कर दीजिए। अगर आपको सुबह उठने पे पेन और स्टिफनेस लगती है, जो कि आप लेटने से पहले बिल्कुल ठीक थे, बट सुबह उठने पे आपको लगता है कि स्टिफनेस है और वो है, अगेन दिस इज द थिंग कि अब वो मैट्रेस आपके लिए ठीक नहीं है। जब आप बेड खरीदने जाते हैं तो अगेन जो मैट्रेस का साइज आपको बेड के हिसाब से पूरा चूज करना होता है ना। कॉमनली क्वेश्चन आता है कि मैट्रेस कैसे खरीदें। बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। मैट्रेस हर एक के लिए अलग अलग है, ऐसा नहीं है। मार्केट में 1000 तरह के मैट्रेस हैं, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है, हार्ड बेड है, सब कुछ तरीके का है। आप जाइए, लेट के देखिए, साथ में किसी को ले जाइए, उसको बोलिए कि मेरी कमर के नीचे हाथ पास करके देखें। अगर वो बहुत ही इजीली पास कर रहा है, आपका अपना हैंड जो है वो आपकी कमर के नीचे बहुत इजीली पास कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जरूरत से ज्यादा हार्ड है आपके लिए बेड। अगर वो पास ही नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट है आपकी कमर के लिए। और विथ स्लाइट डिफिकल्टी इफ ही इज एबल टू पास, दैट इज द करेक्ट मैट्रेस फॉर यू। सो हर एक की बॉडी की स्टिफनेस अलग है, हर एक की बॉडी की वो अलग है, तो वो आपको चूज करना चाहिए। बाकी ये कि हस्बैंड वाइफ में दोनों में अलग अलग हो सकता है, वो आपको फिर बार्गेनिंग करनी पड़ेगी कि किसके लिए कौन सी लेनी है। सिमिलरली गार्डनिंग अगर आप करते हैं, गार्डनिंग करते हुए अगेन हैवी वेट्स हैं तो उसको भी ध्यान रखना है। वार्म अप करना है अगेन काम शुरू करने से पहले। गुड क्वालिटी आपके जो टूल्स हैं आप यूज करते हैं वो भी गुड क्वालिटी के होने चाहिए। अगेन जितना स्प्लिट कर सके काम को स्प्लिट करना चाहिए। अगर आप क्यारियों में काम करते हैं तो क्यारी ओल्ड एज में स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए कि ज्यादा दूर ना हो, ठीक है। जितना वॉक करने में जितना पास में हो उतना अच्छा है। जितना ऊपर कर सकते हैं क्यारियों को, जितना वो कर सकते हैं वो उतना बेटर है। ट्रीज एंड लॉन्स का काम काफी ज्यादा हो जाता है, तो अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना चाहिए। लॉन्ग हैंडल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, लाइट वेट टूल्स ज़्यादा अच्छे हैं। नाउ अगला क्वेश्चन आता है कि हम सिटिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, आर वी सिटिंग ओके और नॉट। तो मैंने जो चीज़ आपको बताई कि फर्स्ट अप देन बैकवर्ड, ये पॉस्चर आपका मेंटेन रखना चाहिए। तो जो आपकी चेयर है जिस पे आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं वो इतना होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप सोफे पे ज़्यादा बैठते हैं, चेयर आपकी सैगिंग है, तो अगेन दिस इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म। फर्म सीट होनी चाहिए, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। जो पॉस्चर मैंने आपको बताया वो पॉस्चर आपको मेंटेन करना चाहिए। वो है, शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, जिसको जितना अनकंफर्टेबल लग रहा है इसका मतलब उसका पॉस्चर उतना ही खराब है। ये धीरे धीरे आप इसको फॉलो करेंगे तो विद इन 1 मंथ और सो देन यू विल फील कि मेरी पॉस्चर बेटर हो गई है, ये पॉस्चर मेरे को कंफर्टेबल लगता है। जब भी आप चेयर या वो करें तो ऐसा लें कि आपके नीज जब आप बैठे उस चेयर के अंदर कितनी हाइट होनी चाहिए, जितनी आप बैठे तो आपके नीज 90 डिग्री पे बेंड होने चाहिए। अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा बेंड हो रहा है आपका नी, तो दैट मीन्स वो जरूरत से ज्यादा नीचा है आपके लिए। या आपके पैर अगर डेंगल कर रहे हैं हवा में या नहीं हो रहा तो इसका मतलब जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। अगर आपको कभी ऐसी जगह पे बैठना पड़े कि जो ज्यादा ऊंची चेयर हो, तो उसमें ऑब्वियसली फिर आप जो एक सपोर्ट ले लें फुट के नीचे या वो कर लें। रसोई में भी जो फीमेल्स काम करती हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप एक छोटा सा स्टूल, जिसको छोटा सा स्टूल, पतला सा स्टूल रख लें और फीट को अल्टरनेट करते रहें उस पर, हर 15 मिनट के बाद एक फीट उधर, सो दैट यू नो योर पॉस्चर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। हम हमेशा बोलते हैं अपने पेशेंट को कि अपनी लाइफ में हमेशा 55 मिनट्स एंड आवर का रूल फॉलो करना चाहिए। 55 मिनट्स आप जिस भी पॉस्चर में अगर बैठे हुए हैं तो 5 मिनट्स के लिए खड़े हो जाएं। अगर आप 55 मिनट्स खड़े हुए हैं तो 5 मिनट्स के लिए बैठ जाएं। तो ये 55 मिनट्स एंड आवर का रूल फॉलो करना चाहिए। तो रॉन्ग साइज चेयर का मैंने बताया कि आप फुट को टक करके बैठ सकते हैं, उसके एज पे आके बैठ सकते हैं, और अगेन जो है डेंगल करने की बजाय जो है वो सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं उस पर आप। कार का भी सिमिलर फीचर है कि आपको कार में भी अपनी पॉस्चर मेंटेन करनी है। ट्विस्टिंग और टर्निंग की मूवमेंट अगेन अवॉइड करनी है। जब आप कार से उतरते हैं या कार के अंदर बैठते हैं तो भी अपने पहले फीट बाहर करिए या फीट एक साथ अंदर करके फिर बैठना है। अगर आप लंबी जर्नी पे जाते हैं, अगेन 55 मिनट्स एन आवर का रूल फॉलो करना चाहिए कि हर 55 मिनट्स के बाद आइडली आपको 5 मिनट्स ब्रेक करके देन यू शुड टेक अ राउंड अराउंड द कार एंड देन सिट अगेन इनसाइड। So this is again just to show you the actual posture. सामान अगेन निकालना है या डालना है, अगेन ट्विस्टिंग एंड टर्निंग मूवमेंट अवॉइड करनी है, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है हम डिक्की से सामान निकाल के किसी को पकड़ा रहे होते हैं, देन इनसाइड ऑफ टर्निंग योर द होल बॉडी वी आर जस्ट गिविंग दी थिंग्स लाइक दैट। सो अगेन दिस इज नॉट गुड। किचन में मैंने आपको बताया कि जो है आप चेंज कर सकते हैं अपनी पॉस्चर को। इसके अलावा जो है जैसे आप सिंक में काम कर रहे हैं तो एक बाउल को उल्टा करके, अगेन उससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा आपको उसके अंदर में, वो चीज़ कर सकते हैं। बास्केट रख सकते हैं लॉन्ड्री के लिए, और फ्रंट लोडिंग मशीन के लिए आप जो है कुशन यूज़ कर सकते हैं बैठ कर, फिर उसमें सामान डाल सकते हैं झुकने की बजाय।
बाथरूम में भी अगेन इफ यू आर यूजिंग बार बार झुक रहे हैं अगर आप पानी लेने के लिए, इससे अच्छा है कि मग या ग्लास ऑफ वाटर लेके उसी से आप स्ट्रेट खड़े होके आप उसको यूज कर सकते हैं. शावर इज कंफर्टेबल इफ यू हैव बैक पेन, देन टेकिंग विद बकेट इट इज वर्स देन टेकिंग बाथ टू द शावर. सारा काम अगर आपका घर बड़ा है तो सारा काम ये नहीं है कि एक ही दिन में करना है. यू कैन ऑलवेज स्प्लिट द थिंग्स. एंड आयरनिंग बोर्ड पे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो ज़्यादा झुकना नहीं है, उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आप स्ट्रेट इस पोस्चर में रह के उससे आपकी हाइट एडजस्ट करनी है. सो स्ट्रेट स्पाइन इज मोर इंपॉर्टेंट. जो पोस्चर मैंने आपको बताया, एक सिंपल टिप, कोई भी काम करते हुए यू हैव टू जस्ट मेंटेन, जस्ट थिंक कि मुझे ये पोस्चर मेंटेन करना है. शॉपिंग करते हुए जा रहे हैं तो अगेन ट्रॉलीज शैलो लेनी चाहिए. ज़्यादा झुकने वाली, ज़्यादा डीप होगी तो ज़्यादा बार झुकना पड़ेगा आपको. उसको जो है, अगर आप लार्ज शॉपिंग करने के प्लान में है तो बेटर है कि आप उनसे डिलीवरी सर्विसेज के बारे में पूछ सकते हैं. आजकल सब कुछ डिलीवरी हो जाता है. तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, मोस्ट ऑफ अस वी यूज कंप्यूटर्स. सो कंप्यूटर इज अगेन यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ सिंपल से टिप्स हैं कि डू नॉट सिट वेरी क्लोज टू दी स्क्रीन. स्मॉल फॉन्ट्स मत यूज करिए. जितना फॉन्ट छोटा होगा आप आगे झुक के उतना अनकॉन्शियसली माइंड में आप आगे झुक के उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा लंबे टाइम तक देखना नहीं है. और ब्राइट विंडो के अगेन मत देखिए. अगेन आप अनकॉन्शियसली यू विल बेंड फॉरवर्ड टू सी द स्क्रीन. एंड वेल लिट सराउंडिंग्स में काम करना चाहिए. नाउ करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए कंप्यूटर पे काम करते हुए? सो दिस इज द डायग्राम. सो जो आपकी स्क्रीन है वो, उसका जो अपर बॉर्डर है स्क्रीन का, वो इट शुड बी एट द लेवल ऑफ योर आईज. स्क्रीन इतने डिस्टेंस पे होनी चाहिए कि वो आपकी आईज के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाए. आपके जो जिस चेयर पे आप बैठे हैं उस पे एल्बो रेस्ट होना चाहिए. your wrist should be resting on the table and your fingers, they should be moving on the keyboard. So these are some simple tips which we should use. Again 55 minutes का आर का रूल फॉलो करना है. या हर 55 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है. आजकल वॉचेस आप सब लोग यूज करते हैं. हर वॉच के अंदर फीचर है कि 1 घंटे में आपको रिमाइंड कराती है कि पोस्चर चेंज कर लीजिए. नाउ एक कॉमनली डिस्क जो कि प्रॉब्लम होती है कि स्लिप डिस्क हो गई है. तो स्लिप डिस्क इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन. लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है, हमारी पॉस्चर ये सब बढ़ रही है. तो स्लिप डिस्क का बहुत ही कॉमन हो गया है. उसके सिम्टम्स बहुत सारे वेरी भी करते हैं. बट इंपॉर्टेंट थिंग है ये रियलाइज करना है कि ये डिफरेंट पॉस्चर हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि स्पाइन के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है डिस्क के अंदर. तो सबसे खराब पॉस्चर है बेंडिंग वाइल सिटिंग. तो इफ यू आर सिटिंग एंड देन बेंडिंग, सपोज आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, पेंसिल गिर जाती है, पेन गिर जाता है, अगर आप झुक के उसे उठाते हैं तो दैट इज द वर्स्ट पॉस्चर. तो बेंडिंग वाइल सिटिंग इज स्ट्रिक्टली नो फॉर एवरीवन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस 275 kilograms of pressure as compared to the normal posture. So ये नॉर्मल MRI दिख रहे हैं आप, ये जैसे दिख रहे हैं, जैसे 5 नंबर है, ये 5L5 वर्टिब्रा है. इसके नीचे डिस्क निकल गई है, पीछे की तरफ नर्व्स होती हैं, फिर वो नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालती हैं और उससे फिर पेशेंट का बावल ब्लडर का कंट्रोल भी जा सकता है. तो इट कैन बी वेरी सीरियस कंडीशन ऑल्सो. सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2/3 ऑफ दीज डिस्क दे हील देमसेल्व्स विद टाइम. ओनली 1/3 जो है लोगों में हमें कुछ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है. एल्डरली फीमेल्स में स्पेशली आफ्टर 55 हमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इवेल्यूएट करना होता है. तो हर 55 ईयर से ऊपर की फीमेल को डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी कॉमन. हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं. एज ये नेचुरल द हिस्ट्री है. मेल्स में आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ एज डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए. एंड इफ देयर इज ऑस्टियोपोरोसिस, आजकल इतनी अच्छी मेडिसिन हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. नहीं तो फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है. इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. स्पेशली इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है. तो अगर फीवर है, अगर लोकलाइज टेंडरनेस है किसी जगह पे, फैमिली में किसी को टीबी हुआ है, तो फिर बैक पेन को सीरियसली लेना चाहिए. नाउ डिफॉर्मिटीज होती हैं काफ़ी सारी बच्चों में, स्पेशली फीमेल्स के अंदर 7:1 का रेशो है. स्पाइन काफ़ी टेढ़ा हो जाता है, कर्व हो जाता है. तो उसके लिए आजकल सर्जरीज पॉसिबल हैं. नहीं तो लॉन्ग टर्म में आप जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उसकी वजह से पेन होता है. जस्ट हम लोग काफ़ी कॉमनली ये सर्जरीज करते हैं. इस तरह से गठिया है. अगर कोई पेन स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में है और आधे घंटे से ज़्यादा रहता है तो पहला डायग्नोसिस बनता है कि किस तरह का कोई गठिया है. और मेल है तो पहला डायग्नोसिस हमारा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बनता है. सो मॉर्निंग बैक पेन विच इज मोर देन 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन, यू शुड थिंक ऑफ कि कोई गठिया हो सकता है. सो अगेन रेड फ्लैग्स हमने बात कर ली. MRI हमारा टेस्ट ऑफ चॉइस होता है अगर रेड फ्लैग्स के दिस थिंग है. इसके अलावा बहुत सारे कॉजेस हैं. कैंसर अगेन रूल आउट करना होता है. तो इंपॉर्टेंट थिंग बैक पेन के बारे में यही है कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर.
सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल दैट हम अपनी बैक पेन की केयर जो है वो डेली करें. आप छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको आप डेली रूटीन में अपने आप ले आएंगे ना, तो ये अनकॉन्शियस, जैसे आप कार ड्राइव करते हैं ना, शुरू में थोड़ा सा लगता है अजीब सा, बट एक बार आपने कार ड्राइव करना सीख लिया तो आप अनकॉन्शियसली ड्राइव करते हो. सेम थिंग आपकी बैक पेन है, एक बार आपने टिप्स सीख लिए, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिए, देन योर बैक पेन विल बिकम ऑटोमेटिक. थैंक यू. Thank you, Dr. Garg, for that informative and practical session. The insights you have shared today will undoubtedly help us all for better care of our spinal health and adopt preventive measures in our day-to-day lives. To formally express our gratitude, I now invite Professor Sri Krishnan, Deputy Director Operations, and Dr. Mahesh Sagar to felicitate our distinguished speaker, Dr. Bhav Garg, with a token of appreciation. Please join me in a round of applause. Thank you, Professor Sri Krishna. Yes. So now we move to our question answer session, where we are encouraged to ask questions and directly contact with our expert here. To felicitate this, I will request Dr. Yasmin, Chief Medical Officer, IIT Delhi Hospital, to moderate the question answer session. And if anyone has any questions, please raise your hand and a microphone will be brought to you. Dr. Yasmin. Thanks, sir, for a very informative talk and especially highlighting the little points about prevention. And I now welcome the whole community to ask questions and clear their doubts from the sir. Go ahead and please ask your questions. सर किसी को 5 साल से बैक पेन है और वो अल्टरन कभी-कभी ज़्यादा बैक पेन होती है, तो वो नॉर्मली वो सर ड्रग्स ले रहा है, जो पेन किलर होती है। सर उसमें ट्रामाडोल रहते हैं ज़्यादातर, जो नारकोटिक्स में आते हैं। तो सर उसी से उस पेशेंट को कम दिक्कत होती है, नहीं तो सर ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है और नॉर्मली जो भी पेन किलर ले। तो सर ये क्या ठीक है? और वो उन्होंने पेशेंट जाँच भी करवाई थी, तो उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो सर क्या अल्टरनेटिव पे पेन किलर यूज़ करना सही रहेगा कि नहीं? देखो, हर कंडीशन अलग अलग होती हैं, ऐसे जनरलाइज तो हम नहीं कह सकते, बट नॉर्मली हमने ये देखा है कि अगर कोई भी बैक पेन या कोई भी मस्कुलोस्केलेटल पेन, इफ इट इज मोर देन 6 months, तो उसमें एक डिप्रेशन का कंपोनेंट आ जाता है, एंड इट इज ए प्रूवन थिंग कि उसमें वो फैक्टर ऐड हो जाता है. जैसे हमारे ना नर्व्स की मेमोरी होती है, तो वो आपका बैक पेन अगर ठीक भी हो गया ना, तो नर्व्स की मेमोरी में रहता है कि वो बैक पेन है. और कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी फिजिकल स्ट्रेस या कोई भी मेंटल स्ट्रेस, वो उस मेमोरी को ट्रिगर कर सकता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि उसका बैक पेन का कॉज क्या है. अगर कोई स्ट्रक्चरल कॉज नहीं है, तो फिर उसको साइकेट्रिक कंपोनेंट को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बैक पेन ठीक नहीं होगा. दूसरी बात, ओपियोइड्स हम इतने लंबे टाइम के लिए नहीं देते हैं. ट्रामाडोल हम इतने टाइम के नहीं देते हैं, क्योंकि ट्रामाडोल इज ए हैबिट फॉर्मिंग ड्रग. तो जो आप चीज मुझे बता रहे हैं ना कि उसको उसी चीज से ठीक होता है, तो अगेन वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हो सकता है. एंड आई विल रिकमेंड कि एक बार अगर कोई स्ट्रक्चरल कॉज नहीं है, तो साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. साइकेट्रिस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ पागलपन ही ठीक करते हैं, दे आल्सो ट्रीट दिस काइंड ऑफ दी हैबिट फॉर्मेशन, और ये जो होता है इसको भी ठीक करते हैं. So I will suggest. Sir, the patient have IBS-D and the Sorry, क्या है? IBS-D, irritable bowel syndrome, IBD, okay. IBS-D, and also the fracture in lower back pain, lower back, L4 and L5. Sorry.
मैंने बताया ना, जो आप चीज पूछ रहे हैं ना, हर बीमारी के ऊपर किताबें हैं, जो जो आपने नाम लिए हैं, तो उसके ऊपर कितना है क्या है वो सारा असेस करके बता सकते हैं। बट जितना आप मुझे बता रहे हैं कि अगर 5 साल से है तो डेफिनेटली देयर वुड बी साइकेट्रिक कंपोनेंट, मतलब जो कि डिप्रेशन का कंपोनेंट ऐड हो जाता है, वो उसके लिए भी वैलिडेट करना चाहिए। और इतने लंबे टाइम के लिए आई विल नॉट सजेस्ट कि ट्रामाडोल लेना चाहिए। Sir, last question. Sir, can I use these drugs for the long duration of time? जस्ट सर क्योंकि हील नहीं हो पा रहा है, तो क्या लंबे समय तक ड्रग्स लेना सही रहेगा? क्योंकि कोई और ऑर्गन तो डैमेज तो नहीं हो वो जाएंगे? आपको आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि क्या करना है उसमें। ट्रामाडोल के भी डेरिवेटिव्स हैं जो कि नॉन हैबिट फॉर्मिंग भी आते हैं, तो आजकल वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर वो किस हिसाब से देना है, क्यों देना है, नॉर्मली हम इतनी दवाइयाँ इतनी लंबी हम एडवाइस नहीं करते। थैंक यू सर। Hi. I saw in two places where I worked in National Standards Institution in Maryland. Okay, all the older people who are standing and working. Okay, they don't sit at all. Everybody has standing desk. Then after retirement, I worked in a data science company rather. There, all the young people are standing and working. But now I feel that I can't stand and work. My legs are paining. Which one would you advise rather? I told you that 55 minutes an hour. कोई भी Hmm. ऐसा नहीं है कि एक 100% पेनाशिया है। Yeah. 55 मिनट्स के बाद आपको पोस्चर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ खड़े रहेंगे तो आपके नीज पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। Yeah. तो और अगर आप सिर्फ बैठ के करेंगे तो बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो एवरी 55 मिनट जस्ट 5 मिनट के लिए आप पोस्चर चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Thank you. Hello, doctor. Speaking from here. Hello. So actually, most of our computer chairs that we have, or even if you go for ergonomic chairs and so on, they have the support. But the posture that you mentioned, that we sit straight and then take the shoulders back, it appears that is it possible for normal chairs to have that posture? यस, इट इज पॉसिबल। आप Because- उसको मेंटेन करो, शुरू के 5-7 दिन दिक्कत होएगा, बट उसके बाद देन यू विल बिकम ओके। But if we have support at the back, then keeping the shoulders back, वो सपोर्ट से उतना मैटर नहीं करता है। वो आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो यू आर जस्ट आपकी स्पाइन, अगर आप ऐसे बैठे हैं, इफ यू आर एडिंग सपोर्ट्स दिस थिंग, योर पोस्चर इज द सेम, स्पाइन का पोस्चर तो वही है, फिर स्पाइन का पोस्चर करेक्ट नहीं हो रहा है। right? But there are this low back chairs and there are high back chairs. So I think High back chairs are always better because this gives you proper maintenance of your neck also. See, in spine there are 4 curves. So the neck is a C shape facing backward. The thoracic region, the upper back is facing anteriorly, and then the lower lumbar is again facing backward, C. So this curvature should be maintained. When we bend, when we sit like this slouching forward, then the whole spine faces anteriorly. It becomes a big C. So overall biomechanical, the posture of the spine changes. So if you are spending suppose 6 to 8 hours while sitting like this, but when you start walking, for walking you need your skull to be centered over the pelvis. For that needs you all the 4 curvatures. But if you're sitting like this, it's same like कि आप एक स्टोन के ऊपर वाटर ड्रॉप डाल रहे हैं ना, तो थोड़े टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वहाँ निशान पड़ जाता है। तो अगर आपको ऐसे ही बैठने का है, 8 घंटे आप डेली बैठते हैं, next 5 to 10 years your spine will become like this, then we will have problem while walking and this thing, and then फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। thank you. हेलो डॉक्टर साहब, मैं एक फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हूँ। सर मैं एक फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हूँ। सर मैं बचपन से ही क्या है कि मैं घुटमन चला करता था तो मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है सर। मुझे बैक पेन भी रहता है और अब धीरे धीरे क्या होने लगा है कि मेरे को जो पैर में है ना, वहाँ भी दिक्कत होने लगी है, वीकनेस सी महसूस होने लगी है। बैक पेन भी मेरे रहता है लेकिन मैं मेंटेन कर लेता हूँ। तो सर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जो आप मुझे बता रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी, कि जो ये मसल्स वीकनेस होती है जो जन्म से होती हैं या इस तरह की प्रॉब्लम बचपन से शुरू हो जाती हैं, तो उसमें स्पाइन के ऊपर काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो स्पाइन टेढ़ा भी हो जाता है उसकी वजह से। और उसकी वजह से जो रिब्स होती हैं हमारी, वो इसको पेल्विस को कूल्हे को टच करने लगती हैं, तो स्पेशली बैठते हुए काफ़ी पेन होता है आगे की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कई बार सर्जरी के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम सर्जरी से उसको स्ट्रेट कर देते हैं वापस नॉर्मल, जैसे मैंने बताया 4 पोस्चर होते हैं, उससे सर्जरी से फिर हम उसको क्रिएट करते हैं फिर उसको। तो अगर दिक्कत ज़्यादा है तो फिर हमें सर्जरी के लिए भी सोचना पड़ता है। हेलो डॉक्टर गर्ग,
here. Yes, please. So, as per my MRI and X-ray, I've been told that I have a slip disc damage. So, I've been given some medicines for 40-45 days. So, first question is why 40-45 days specific? And then next is every morning when I wake up, or like all 24 hours, not counting the amount of hours I'm sleeping. So, my left leg has a pain, continuous pain, and it's tingling effect, and it's very, like heavy feeling. So what should I do? I mean, should I continue with the prescription that I've been given, the medicines, when or we treat such kind of patients, any kind of this thing, the treatment is decided by many factors. It means you need a complete picture. You need a person sitting in front of you. We also need to see the frame. We also need to see the colors and all those things. So same, मुझे आपका clinical examination चाहिए होगा, आपके MRI के pictures चाहिए होंगे, X-rays चाहिए होंगे, फिर जो आपके लिए ideal treatment है वो हम treat करते हैं. जैसे आपका अभी posture है ना, वो तो बहुत ही गलत है. जिस हिसाब में आप बैठे हैं, you are sitting like this, so definitely this is going to cause problem. So postural, तो अगर मुझे लगता है कि पेशेंट का posture गलत है, कोई इमीडिएट रेड फ्लैग नहीं है कि मुझे सर्जरी करनी है, नर्व्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो नॉर्मली हम फिजियोथेरेपी पे और मेडिसिन से काम करते हैं. यूजुअली वी गिव अ ट्रायल ऑफ 6 वीक्स. तो 70% पीपल दे गेट बेटर विद इन 6 वीक्स, एंड इफ दे गेट बेटर विद इन 6 वीक्स देन वी यूजुअली कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months. अगर 6 वीक्स के बाद आप मुझे बोलते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं है या सिम्टम्स बढ़ गए हैं बीच में, देन देयर आर ऑप्शंस व्हिच कैन रेंज फ्रॉम सम स्पेसिफिक इंजेक्शंस की भी कई सारी वेराइटीज होती हैं, और सर्जरी भी ऑप्शन है हमारे पास. सर्जरी की भी कई सारी वेराइटीज होती हैं. तो अगेन डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स वी डिसाइड व्हाटएवर इज द बेस्ट फॉर यू. Hello, sir. Thank you for the session. Sir, I have a couple of questions. So, first of all, like आपने बोला कि हम अगर रॉन्ग पोर्शन में बैठ रहे हैं और फिर हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ दिन अनकंफर्टेबल होता है. सो आई हैव ट्राइड दिस. मतलब मैं टेढ़ी बैठती आई हूँ, जब भी मैं सीधी बैठती हूँ, अगर मैं एक दिन भी मैक्सिमम टाइम कॉन्शियसली ऐसा करूँ तो आई फील कि मुझे ज़्यादा बैक पेन होने लगता है. सो इज इट पार्ट ऑफ दैट डिस्कम्फर्ट? बिल्कुल. आप जिम जाना शुरू करते हैं तो पहले 2 दिन जो मसल्स वेट उठाते हैं ना, जिसने भी अगर किया है तो दे नो कि व्हाट इज डोम्स. इसको डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, काफी पेन होता है. तो आपको जो बुरी हैबिट्स है ना, उनको छोड़ने में काफी टाइम लगता है. So तो बॉडी even- जिसमें अकस्टम्ड हो जाती है ना, उसको चेंज करने में प्रॉब्लम तो होगी. तो So that means बट even 5 to 7 days में यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस. Okay, so I should continue the same. यस. And sir, जैसे हम squats कर रहे हैं, so we are supposed to keep our back straight. Yes. Okay. Same, which I told you that you have to brace your spine, so that there should be no movement at your back. Rather, the gluteal muscles, they should be doing all the squat work. Sir, actually what happens is कि like मैं एक follow along video से करती हूँ. So like वो 10 rounds करते हैं, but I think 5-6 तक मेरा back straight रहता है, फिर उसके बाद अपने आप मुड़ने लगता है. That means कि आपके हिसाब से वेट ज्यादा है जो भी आप कर रहे हैं, फिर वेट को कम कर लीजिए. Okay, or maybe I can reduce the number of rounds and then eventually increase. That's what I'm saying. Either you reduce the volume or you reduce the weight. Okay. And sir, one more question, like it is not directly related to this, but like I have heard कि body के सारे cells 2-3 साल में renew हो जाते हैं. सर, तो जैसे आप बोल रहे थे कि न्यूरॉन्स में वो स्टोर हो जाता है, सो सर वो रिन्यू नहीं होता क्या? सी, ऐसा नहीं है. जैसे होता है ना, मेमोरी थोड़ी थोड़ी ट्रांसफर होती है, तो अगर वो ट्रांसफर ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और जो नई सेल्स हैं उसमें भी ट्रांसफर हो गया है वो, तो फिर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एंड सर जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स यूजुअली रिन्यू नहीं होते हैं. न्यूरॉन्स तो जो एक बार बन जाते हैं वो बन जाते हैं. तो न्यूरॉन नर्व्स की जो मेमोरी है, नर्व्स के अंदर स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें कि वो मेमोरी रहती है. तो उसको भी फिर हम नाउ देयर आर मेडिसिन्स अवेलेबल जिससे उस मेमोरी को हम सप्रेस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. सर, आपको जो मैंने बताया ना सिंपल टिप, पोस्चर को ऐसे करके आप बैठ के देखिए. इफ इट इज कंफर्मिंग टू योर बैक, दैट इज ओके फॉर यू. सर, मैंने वही बताया कि कोई भी एक चेयर ना सबके लिए ठीक नहीं हो सकती. हर एक की बॉडी डिफरेंट है. आजकल हम बात करें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की, तो वो इसीलिए है क्योंकि हर एक आदमी डिफरेंट है, हर एक आदमी की बॉडी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है. तो कोई भी एक चेयर सबको सूट नहीं कर सकती.
तो मैंने आपको वही बताया कि हर एक की हाइट डिफरेंट है, हर एक की बॉडी हैबिटस डिफरेंट है, कोई मोटा ज़्यादा है, कोई पतला ज़्यादा है, तो सबके हिसाब से एक ही चेयर सबको पर्पस सॉल्व नहीं कर सकती। तो बेस्ट मैंने जो आपको बताया, आप पोस्चर ठीक करके देखिए, बैठ के देखिए, अगर वो आपकी पोस्चर के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठ रही है चेयर, वो आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो सर आपने ये भी बताया है कि अगर कहीं आप गए में तो थोड़ा आगे खसक के अपना ही पोस्चर ठीक करके बैठ जाइए। वो तो मेंटेन रखना ही है। हाँ, अगर आपकी चेयर आपके हिसाब से नहीं है। अगर आप रेगुलर चेयर को आपको वही यूज करना है तो फिर बेटर है आप अपने हिसाब से चेयर लें। Hello, sir. Thank you for the talk. It was really interesting. So, sir, I think recent years there has been significant increase in the number of cases of this back pain problem. So I was thinking that what are the possible causes? Then number one is the wrong posture and what you just said, and then lifting weight in wrong posture. Then what other factors are there? Like how much is the contribution of nutritional deficiency and the toxicity? Like our food is much more toxic than our ancestors had. यस, देयर इज अ बिग रोल कमिंग अप। एक और चीज़ है, मोबाइल जो यूज़ करते हैं ना, मोबाइल पे भी हमारा टाइम बहुत रहता है आगे झुक के, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दे आर अगेन वेरी कॉमन, जो हम लोग एक्चुअली अब पहले हम लोग घर पे रहते थे, बट अब यूजली हमारे जो टाइम है ना, जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, दे आर इन डिफरेंट सिटीज, दे आर ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो न्यूट्रिशन का लेवल तो डेफिनेटली कम हुआ है। नाउ इट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन गट इम्यून एक्सिस, गट बोन एक्सिस। हम लोगों ने इस रिसर्च से भी ये देखा है कि हमारी जो गट है, जो उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, जिसके ऊपर वो काम करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ के जो कंपोनेंट्स हैं। तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन का और हमारी गट की हेल्थ का बहुत ज़्यादा रोल है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्पेशली विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये बहुत कॉमन है। कई बार जो वेक पेन्स होते हैं ना, उनमें फिर ये जैसे हम सप्लीमेंट करते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। हेलो डॉक्टर गर्ग, थैंक यू फॉर द टॉक। इधर सो मेरा क्वेश्चन है कि इन केस ए पेशेंट हैज से L4S1 disk space reduced, in that case can he do sit up or bridge or plank? सर मैंने आपको बताया ना कि डायग्नोसिस L4 L5 का डिस्क स्पेस कम होना नहीं है। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है वो मुझे देखना है, फिर मैं उससे कोरिलेट करूंगा कि ये उसका कॉज है कि नहीं है। इट कैन बी जस्ट एज रिलेटेड नॉर्मल प्रोसेस। Hello, sir. I was having back pain from past 2 years, and I used to have this cotton mattress in my hostel room. Then I upgraded to orthopedic mattress, which was bought from online. However, I am having a back pain which is not on which does not occur on daily basis, but it happens I mean once in a month or twice in a month, or maybe there is no specific gap that when it will occur. However, should I change the mattress or should I keep the mattress? मैंने आपको बताया ना, बहुत सिंपल टेक्निक है। आप लेट के देखिए और अपने फ्रेंड को बोलिए कि आपकी कमर के नीचे हाथ पास करके देखें। इफ बहुत ज़्यादा इजीली जा रहा है, इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड है आपके लिए। अगर बिल्कुल भी नहीं जा पास कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट है आपके लिए। और विद स्लाइट डिफिकल्टी इफ यू आर एबल टू पास योर हैंड, दैट इज द राइट मैट्रेस फॉर यू। वो मैंने चेक किया है, दैट इज कि वो मतलब स्लाइट डिफिकल्टी से ही पास होता है। हाउएवर कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठ के दर्द ज़्यादा होता है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट बट इट ऑकर्स देखिए, अगर समटाइम्स। डेली नहीं हो रहा है तो फिर अनलाइकली है कि वो बेड मैट्रेस की वजह से है। फिर एक बार मैं रूटीनली आई विल सजेस्ट कि आप एक बार अपना एवेल्यूएशन करा लीजिए, ब्लड टेस्ट वगैरह करा के, लेट्स सी कि उसका कॉज क्या है। थैंक यू सो मच। हेलो सर, थैंक यू फॉर द टॉक। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे 5 साल पहले लिगामेंट ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम पर एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से नहीं की थी, तो वो पेन तब से अभी तक है, तो अभी कैसे क्योर किया जा सके या फिर ऐसा कुछ? कौन सा लिगामेंट? सर नी के पास। Knee ligament is a totally different thing. It is not related to back pain, but still,
वो देखना पड़ेगा कि वो लिगामेंट जो आपने यूज नहीं किया, आपने एक्सरसाइजेस प्रॉपर्ली नहीं की, तो उस लिगामेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो हम टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर लिगामेंट की स्ट्रेंथ ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी सिर्फ मसल्स की वेस्टिंग हुई है, तो फिर मसल्स को फिर बिल्डअप करना पड़ेगा। सर वो एक्सरसाइज का कोई मस सॉल्यूशन नहीं है, एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, उससे आप एस्केप नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। Hello, sir. Thank you for the knowledge. My question is it necessary to use mattress? Sorry? Is it necessary to use mattress? Like I don't use mattress for last around 5 years and I'm still fine. So again it depends. I told you, you just check the hand theory. If it is working, then it is okay for you. Okay, thank you. Thank you so much, sir. From 2010, actually, I was suffering from back pain, and 2023 January, I had my surgery for massive sciatica pain. After that, doctor suggested that only walking is my therapy. I cannot do anything. Usually, I'm a sportsman, and nowadays I used to use bicycle. And I would like to request you to give some suggestions in this regard. Actually, what can I do, and how can I pass my days in this condition? See, if you have undergone a surgery, then you need to be properly evaluated. What kind of surgery and what was the indication of surgery. So everything needs to be seen, and then only a personalized, the exercises and do's and don'ts for you that should be recommended. We cannot give you a generalized listing tip. So you need to be evaluated if there is a surgery, because surgery changes many things. Thank you for the talk. I have two questions, if you will allow. One, will the slides be made available to us? Can it be? I have no problem. We'll try to. Okay. Sure. We can give the printout. Okay. Hello. You can also share the Yeah, I can give. Video will be uploaded. Right. And sometimes when you have a hand support, does it help to take some support from It the is hand? always better to have a chair with hand support. And your forearm, at least, and there are chairs, which provide only this much support. And there are chairs like this which give full support. So full support is always better. So it may help to rest your spine a Yes. little bit? Yes, because it helps your shoulder relaxing, so your neck also becomes relaxed. Otherwise, weight is always there, dragging your nerves downwards. Hello. Sir, I'm having a back pain since last 1 year. So, sir, I wanted to ask that can it go away on its own? Since how long you are having? Since 1 year. last 1 year. See, Sir, 1 I year, had then an X-ray. that means it is a red flag, and you need proper evaluation. Okay, sir, I had an X-ray from AIMS, and doctor suggested me exercise. I have done exercise, but it's still I am facing that problem. So normally at AIMS, if we are advising exercises, then we ask you to follow up after 6 weeks. Did you follow up that? No, sir. So that is a problem. So if you are not responding to medicine, so we always move to next step. So we usually, there are areas where we prefer to take stairs, and there are certain areas, certain problems where we prefer to take lifts. So in some cases we straight away advise surgery, and in some cases we take stairs. We start with physiotherapy, we start with medicines, then we increase the doses of medicines, then we go to injections, and then we go for surgery. Sir, there is no problem while walking, but it's increased while I'm just bending forward. So if something is persisting for 1 year, that means there is definitely a problem and it needs to be looked into. So if you are not responded to the physiotherapy for 6 weeks, then the next step is to get an MRI done and to see the other causes, and then plan accordingly your next step of treatment. Sir, is there any chance that what percentage of people it can just go away on its own? Like, is there any? See, I believe in miracles. They do happen. Oh, thank you, sir. So, thank you, Professor Garg. Here.
Yes, please. So, once somebody is diagnosed with prolapsed intervertebral disc, and let's say they are currently undergoing treatment and they have some pain, etc. So, one question is what they can do and cannot do. Other is when they are healed, and then, like you said, that it may come again because you had that. What kind of activities, maybe sports or daily life activities, what are recommended, what is not recommended? Is there any guidelines on this? So I showed you a slide where we showed the different pressure on, the pressure on the spine, different activities. So for a disc patient, bending while sitting is strictly no. And again, if you are regular with same, like मैंने बताया ना, बाल सफेद हो जाते हैं, आप रंग लगा के काला कर सकते हैं. तो आप जब तक एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे आप, तो you can do all your daily activities. But the moment you will leave your exercises, these back exercises, तो अगेन फिर वो कंपोनेंट आ जाएगा वापस, फिर आपको प्रॉब्लम होगी. तो अगर आपकी बैक की मसल्स प्रॉपर कंडीशनिंग में है, प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ हैं, then you can do all activities. So even like swimming, etc. Swimming is actually very good for back pain. Hello. सर माय क्वेश्चन इज दैट सर लास्ट दिसंबर एंकल मेरे ब्रेक हो गई थी बोन, तो सर अभी तक उसका पेन बना हुआ है और मैं जब तक मेडिसिन लेती हूँ तब तक तो मुझे पेन नहीं होता है. जैसे मैं मेडिसिन बंद कर देती हूँ तो उसका पेन रहता है. इसके लिए सर मुझे कितने टाइम तक इस चीज को सफर करना पड़ सकता है? अगेन देखना पड़ेगा कि आपकी हड्डी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है. हाँ सर, उसका मैंने एक्सरे कराया था 2 से 3 टाइम्स, तो डॉक्टर्स का कहना था कि बोन तो आपकी जुड़ गई है. नहीं, बोन करेक्टली जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है वो सब देखना पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन देखनी पड़ेंगी, हमें फिर ही बता सकते हैं. ओके सर. सर सेकेंड क्वेश्चन इज डैट कि सर मैं जब स्टेयर्स में अप एंड डाउन्स करती तो मोस्ट ऑफ मेरे नी में पेन हो जाता है, जबकि मैंने इसका एक्सरे लेके डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का कहना था कि मतलब एक्सरे सही है. उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं की, बोले कि जरूरत नहीं है. तो सर इसके लिए पर मुझे पेन होता है. आई विल सजेस्ट कि आप डॉक्टर चेंज कर लो. Thank you. Thank you so much for the. This is last question. Thank you so much for the question and answer session. Last, I think. अच्छा, last repeat. Thank you, Dr. Garg, for the knowledge. मैं एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. जो हम लोग पूरा दिन भर काम करते रहते हैं, बहुत तरह का काम करते रहते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में उतना नहीं रहता है कि हम लोग पोस्चर मेंटेन करके बैठे. हम लोगों का जो स्लाउज पोस्चर है उसी में हम लोग बैक करके आ जाते हैं. तो इज इट गुड कि हम लोग वो जो मार्केट में अभी अवेलेबल है जितना सारा पोस्चर करेक्शन बेल्ट्स है वो यूज करें, या फिर मतलब दूसरा कुछ वो यूज करने से हम लोगों का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ऐसे कुछ? जो पोस्चर करेक्ट डिवाइसेस है ना, दे यूजली डोंट वर्क. आई मीन वो उस टाइम के लिए आपको कर देंगे, बट जैसे ही आप उसको करेंगे, अगर आप पहन सकते हैं उसको लाइफ लॉन्ग तो ठीक है, बट सिंपल एक्सरसाइजेस जो मैंने सिंपल टिप्स बताई ना, थोड़ा सा एक्टिव आपका वो रहेगा ना, आप डेली थोड़ा सा सोच के करें कि मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, या बैठे बैठे भी आपको जो मैंने बताया ये सब करेंगे, तो दीज थिंग्स दे गो लॉन्ग वे. थोड़ा सा आपको डेली, जैसे सुबह उठना, मॉर्निंग में उठना है, आप सब चीजें करते हैं ना, डेली एक्टिविटीज, अपना खाना खाते हैं, सब कुछ है, आप करेंगे, एक बार हैबिट बन जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. थैंक यू सर. So thank you so much for your questions. Your enthusiasm is truly appreciated. And I really thank sir for with all his patience, he has used his knowledge, his experience to clear our doubts. Thank you so much. I ask Junaid to please continue the session. Thank you, Dr. Garg. And thank you all for your active participation and thoughtful questions. Now I request Dr. Yasmin to deliver the vote of thanks. On behalf of IIT Delhi, I extend my heartfelt gratitude to Dr. Bhavuk Garg, Professor of Orthopedics, AIIMS, for his insightful and engaging talk on backaches, do's and don'ts. His expertise and clarity have enriched us all and helped bridge the gap between medical science and daily well-being. We are deeply grateful to the dignitaries whose support made this event possible: Professor T.R. Sri Krishna, DDO, Professor Shilpi Sharma, Associate Dean, Academic Outreach and New Initiatives, and her whole team for their full support,
Professor Dr. Mahesh Sagar, CMO, SAG, and Head Hospital Services, for his vision in organizing such valuable sessions. Our hospital doctors and staff for their efficient coordination and unwavering dedication. And last but not the least, on behalf of the organizing team, it's my privilege and heartfelt duty to extend a warm vote of thanks to each one of you for attending today's public health lecture. Your presence here reflects a deep and commendable commitment to learning, awareness, and above all to health. In an age where distractions are many and time is precious, your choice to be a part of this session sends a strong message that health matters, knowledge matters, and community well-being matters. May the knowledge shared today empower you, and may you carry it forward for yourself, for families, and your communities. Once again, thank you for your time, enthusiasm, and dedication. Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, ma'am. Now we request you all to join us for the high tea in the foyer of the seminar hall, and we look forward you to be present in the upcoming sessions of Arogya. Thank you.